آدم، ابن آدم کا کل قیامت کا دن ہوگا۔ الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ الآیت۔ معزز اسٹیج میں تشریف فرمائے ہوئے علماء اکرام، احناف و اقرار سے آئے ہوئے علاقہ کے اسلامی ہمدرد قوم ملت، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، میں قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، جو تلاوت کی ہے، ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کروں انشاءاللہ، کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، یہ آیت آج کے موجودہ دور پر فٹ بیٹھتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی کچھ تعداد ایسی ہے، ان کو حدیث و قرآن کی بات اچھی نہیں لگتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو ہٹلر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھوں گا اپنے اس قیمتی وقت پر انشاءاللہ تعالی، میں خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کانوں کو کھول کر سنیں، غریبن کے بٹانوں کو کھول کر سنیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمائے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ او لوگوں، میں تمہارے آنکھ کی چوری کو بھی جانتا ہوں۔ تمہاری آنکھ جس جس چیز کا جائزہ لے رہی ہے، ہم ان چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہوں، ہمارے فرشتے سے ریکارڈ کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانوں، سنو، کان کھول کر سنو، اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر تمہارے لیے کہہ رہا ہے، جو آج کی بے حیائی کی دور پر جو اسلام کے ان نوجوانوں نے، ان سپہ سالاروں نے جو کام کر کے رکھا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ہم تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وما تخفی الصدور، یہ تو رہی آنکھ کی بات، وما تخفی الصدور، ہم تمہارے دلوں کو بھیدوں کی بھی جانتے ہیں۔ نوجوانوں، تم راستے میں چلتے ہو، کن کن چیز کی جائزہ لے رہے ہو، کن کی بہو بیٹیوں پر نظر ڈال رہے ہو، اللہ ان چیزوں کے جائزہ کے لینے کے وجہ سے تمہارے پر مسلط کرے فرشتوں بھی تمہارے کام کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور یہ تو رہی آنکھ کی بات، یہ تو بہارنی حصہ کی بات ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں میں جو بات رہتی ہے، ان باتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہمارے فرشتے بھی مقرر ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب تم آنکھ کی چوری سے بھی بچ نہیں سکتے ہو، یہ آنکھ کی تو بہت دور کی بات، تم اپنے دل کی باتوں سے بھی بچ نہیں سکتے ہو، اللہ وہاں تک بھی واقف ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں سے واقف ہے۔ اور آئیے، جب میں آگے بڑھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔
आए मेरे बंदे और बंदियों सुनो, तुम्हारे मुंह से जिन जिन अल्फाजों को अदा करते हो, तुम्हारे मुंह से जो बातें निकल रही हैं, हम इनको रिकॉर्ड करने के लिए किरामिन कातिबीन को रखे, हम इनको रिकॉर्ड करने के लिए, हम इनको दर्ज करने के लिए हमने फरिश्ते मुकर्रर के रखे। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, हम इनको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे फरिश्ते उस पर मौजूद है। मेरे प्यारे साथियों और नौजवानों, अपने जिंदगी को गलत जगह में इस्तेमाल करने वालों, बाजारों में इस्तेमाल करने वालों, कान खोल कर सुनो। ये आयत तुम्हारे ऊपर दलालत करती है कि तुमने अपने जवानी के जोश में आकर, अपनी जवानी में मगन होने के बाद तुमने अपनी जवानी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हो। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम दुनिया के कैमरे से इतना डरते हैं, जबकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा है। आज तो बहुत तरक्की कर चुके हैं, किशनगंज इलाके भी बहुत तरक्की कर चुके हैं, आपके बहादुरगंज के भी बहुत तरक्की कर चुके हैं। बड़े बड़े शोरूम में, बड़े शोरूम में, बड़ी बड़ी दुकानों में कैमरे लगाए रहते हैं। कैमरे किस मकसदों से लगाया रहता है? सिक्योरिटी के मकसद से लगाए रहते हैं, और उसमें बाकायदा लिखा रहता है यू आर अंडर सर्विलेंस, आप कैमरे के अंदर में हैं। लिहाजा चोर भी 1000 मर्तबा चोरी करने से डरता है, जबकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा है। इनकी वायर टूट भी सकता है, बिजली की सप्लाई जा भी सकती है, इनकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है, इनकी कनेक्शन खत्म भी हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जबकि इंसान का बनाया ये कैमरे, जब तुमको इतना इस कैमरे से इतना डर है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे ऊपर जो कैमरे को मुतय्यन करके रखा है, कभी इनके बारे तुमने सुना है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आए मेरे बंदे, आए ललिया चौक के नौजवानों सुनो, आए ललिया चौक के उन गुनाहों के अड्डा में रहने वालों सुनो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं 24 घंटा इन दोनों किरामिन कातिबीन को, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, हमने इन दोनों को मुतय्यन करके रखे हैं। यअलमून मा तफ़अलून, जो तुम करते उनको रिकॉर्ड करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम जिन जिन हरकतों को करते हैं, इनको रिकॉर्ड किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं इतना बताना चाहता हूं नौजवानों, अपनी नौजवानी के जोश में आकर गलत जगह में अपनी जिंदगी को ना गवाएं, अपनी जिंदगी को, अपने पूरे जिस्म को, पूरी टाइट बॉडी को गलत जगह में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अल्लाह तुमसे भी सवाल करेगा। अल्लाह तुमसे भी इन नियामतों का सवाल व जवाब होगा। इब्न आदम का उस वक्त तक एक कदम भी नहीं हिलेगा। ला तज़ुलु कदम इब्न आदम का कल क़यामत का दिन होगा, उनका एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है, जबकि 5 सवालों का जवाब ना दे। मेरे प्यारे साथियों, जब हमारा कचरा चिट्ठा जब हमारे हाथ में दिए जाएंगे, तो फिर अल्लाह से क्या जवाब देंगे? अल्लाह के सामने कौन सी शक्ल लेके, कौन सी चेहरे लेके हम खड़े हो जाएंगे? मेरे प्यारे साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस बेहयाई के दौर पर, इस गुनाह के दौर पर अपने इफ़्फ़त व अज़मत को बचाना बहुत ही परेशानी का सबब बनता है। इसलिए नौजवानों, अगर तुम्हें कोई चीज बचा सकती है तो एक चीज है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर। मेरे प्यारे साथियों, अगर तुम कहीं भी रहो, चाहे हॉस्टल में रहो या घर में रहो या मदरसों के कमरे में रहो या बाप माँ से अलग रहो या उस्ताद से अलग रहो, दुनिया के किसी भी कोने पर रहो, किसी भी खित्ते पर रहो, एक चीज अपने दिलो दिमाग में बैठा लो, कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। उनकी पकड़ का आलम ये है, उनकी कुदरत का आलम ये है, उनका मुआखज़ा फरमाते हैं कि हम उनके, क्या हमने कभी सोचा कि बहुत खूबसूरत हम हैं? इस्माइल यूसुफ अलैहिस्सलाम से खूबसूरत हमारी सूरती नहीं है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतें देख लेती तो अपने हाथ काट बैठती। इतनी खूबसूरत कौन थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। कुरान ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को डिटेल को जब बयान किया, इतने अच्छे से किया कि किसी को नहीं किया। जुलेखा नाम से पुकारा जाता है, उनका नाम हदीसों के अंदर भी जुलेखा नाम लिया गया है, कुरान के अंदर भी जुलेखा नाम से उनको भी ताबीर किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की उसकी मोहब्बत से वो पागल हो गई, इश्क में इश्क का भूत चढ़ गई उनके ऊपर। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए उनको ये चाह रहे थे ताकि वो आए। मेरे प्यारे साथियों, कुरान ने ये आयत भी, ये बात भी रिकॉर्ड कर लिए। बुलाने का
انداز بھی ریکارڈ کر لیے. وقالت حیت لک, آئی یوسف علیہ السلام آؤ میرے ساتھ جسمانی خواہشات پوری کرو, میں تم سے اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنا چاہتی ہوں. لیکن اس موقع پر وغلقت الابواب, تمام دروازے کو بند قرار دیے گئے ہیں, اور اس وقت یوسف علیہ السلام بھی اکیلے ہیں. آئے نوجوانوں, یوسف علیہ السلام بھی اکیلے ہیں, بہت خوبصورت ہے, لڑکی بھی اکیلی ہے, زلیخا بھی اکیلی ہے, یوسف علیہ السلام بھی اکیلا ہے. ان موقع پر جب ان کو بلا رہی ہے, آئے قالت حیت لک, آئے یوسف علیہ السلام آؤ میرے ساتھ جسمانی خواہشات پوری کرو. لیکن یوسف علیہ السلام اس موقع پر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں, اللہ ایسے گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہو سکتا ہے, میں ایسے گناہ نہیں کر سکتا ہوں, اللہ تو اس سے بچا لے, اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں, فتعوذ باللہ, اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ نوبت آئی ہے, ان کے ساتھ بھی یہ حالت آئی ہے کہ ان کو بھی خوبصورتی کی آزمائش بھی ہوئی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خوبصورت ہیں, آپ بھی حسین و جمیل ہیں, آپ کو بھی ان دنیا کی جو لڑکیاں ہیں, ان دنیا کی جو گندی لڑکیاں ہیں, یہ آپ کو بھی بلائے گی, آپ کو بھی بلائے گی, دعوت دے گی, لیکن اس سے بچنا ہے. اور ان تمام چیزوں سے, گناہوں سے کون روک سکتا ہے؟ کس چیز کی طاقت ہے؟ ایک چیز قرآن کے اندر آ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کا پکڑ ہمارے ساتھ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کہیں بھی رہیں, چاہے آپ بازار میں رہیں, چاہے آپ ہاسٹل میں رہیں, آپ بند کمرے میں رہیں, کہیں بھی رہیں, کسی بھی جگہ میں رہیں, یا سوچیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اتنی ساری باتیں ایک ہی چیز پر ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اب آئیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا ڈر سے کیسے بچ سکتے ہیں. وقت ہے نا شاید. اللہ تبارک و تعالی اس گناہ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ نوجوانوں سنو, میں تم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہوں, لڑکیوں سے رات رات بھر باتیں کرنا, میں تم سے کہہ رہا ہوں, تمہارے باتوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تمہارے زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں, جو الفاظ نکل رہا ہے, ان کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, میں اس واقعہ کو لانا چاہتا ہوں. بنو اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 3 سے غار میں پھنس جاتے ہیں, غار کی گفا کے اندر رہ جاتے ہیں. ان میں سے ایک معذرت کرتے ہیں, اللہ اے الہ العالمین, میں اپنے چچا جاد بہن سے بہت عشق کر رہا تھا, بہت ہی پیار کر رہا تھا, محبت کی بھوت میرے اوپر چڑھے ہوئے تھے اللہ, لیکن 61 سالی کا زمانہ آ گیا, اور میری چچی جاد بہن, میری وہ چچی جاد بہن میری پاس آ گئی اور کہنے لگی, آئے میرے چچا جاد بھائی, آئے میرے بھائی, مجھے کچھ روپیہ, کچھ رقم مجھے ادھار کے طور پر دے دو, مجھے کچھ ادھار کے طور پر دے دو, کیونکہ میرے بچے بھوکے ہیں, میرے شوہر بیمار ہیں, پھر کیونکہ 61 سالی کا زمانہ آ گیا, کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اللہ, جب میری چچی جد بہن نے مجھے یہ بولی تو میں نے یہ کہہ دیا, اے اللہ, اے میری چچا جد بہن, اگر تم میرے پاس رقم لینا چاہتی ہو تو سنو, ایک کنڈیشن ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ تم کو میرے ساتھ ایک رات گزرنا پڑے گا. کیا بولا؟ کہ تم کو میرے ساتھ ایک رات گزرنا پڑے گا. کیا تم تیار ہو؟ مجبوری تھی, آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہارے پاس آؤں گی, تمہارے مقررہ کر وقت پر میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی, لیکن اے میرے بھائی مجھے تو رقم دے دو. یہ 100 درہم اس کو دیا گیا. انہوں نے اپنی مقررہ وقت پر آ جاتی ہے اور دروازے پر دستک دیتی. اللہ, اے اللہ, جب دستک دیتی ہے تو میں بڑی
खुश हूँ। खुश होने की अलामत तो ये थी कि मैं अपने दिमाग में ये सोच रहा था, मेरी चचीजत बहन मेरे पास आ चुकी है, मैं आज उसके साथ पूरी रात में जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। इतनी सारी वाकया होने के बाद अल्लाह जब मेरे सामने वो आया, वो आने के बाद वो खड़े होकर कहने लगी, आए मेरी चचीजात भाई, मुझसे वो गुनाह का काम ना कर लेना जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। तुम्हारे लिए वो चीज हलाल नहीं है जो मेरे शोहर के लिए मैं हलाल हूँ। आए अल्लाह, अल्लाह से डर, इत्तकिल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचाजद बहन, आए मेरे चचाजद भाई, अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारे लिए मुंतजिर है तुम्हारे गुनाहों का रिकॉर्ड करने के लिए। आए अल्लाह, जब तेरा नाम लिया गया तो मैंने उस वक्त पर उसके शरीर के साथ कोई खिलवाड़ ना किया, मैंने उसको छोड़ दिया। अल्लाह, अगर कोई चीज ने मुझे बचाया, कोई चीज मुझे बचाई तो अल्लाह वो तेरा डर है, वो तेरा नाम जब मेरे सामने लिया तो अल्लाह मेरे साथ ने कभी पैदा हो गई। मेरे प्यारे साथियों, आए नौजवानों, तुम्हें भी औरतें बुला रही हैं, तुम्हें भी लड़कियां फोन से बुला रही हैं, मत जाना, ये गुनाहों का दौर है। रात के तनाई पर मोबाइलों से बात करने वालों नौजवानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, और सुनो, कुरान करीम पढ़ते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ, सूरह कहफ की तिलावत करते चले जाओ। आखिरी एक आयत आती है और वो आयत ये है, व उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। ज्यादातर अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान करीम की इस आयत को इसलिए फिट करता है कि तुम गुनहगार आदमी को देखोगे कि क़यामत का दिन जब उनका नाम आमाल उनको दे दिया जाएंगे, उनके रजिस्टर उनको दे दिया जाएगा, तो अपने नाम आमाल को खोल कर देखेंगे। व उज़ियल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फी, तुम उस दिन मुश्फिक लोग को देखोगे, उस फाजिर लोग को देखोगे, उस सहमे हुए होंगे, वो बड़े घबराए हुए होंगे। उनकी घबराने की अलामत ये होगी कि उन्होंने दुनिया में गुनाह की थी, रात में गुनाह की थी, उन्होंने दीन की सन्नाटे में बंद कमरे में गुनाह किया था, ना बाप को पता था, ना माँ को पता था, ना किसी को पता था, समाज और मुआशरे के से छिपके किया था। ऐसे गुनाह भी उस रजिस्टर के अंदर मौजूद होगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसी चीज को तो कहना चाहता हूँ कि वज़ियल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीन मिम्मा फी व यक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। अल्लाह फरमाते हैं जब उनकी किताब उनको दे दी जाएगी, उनके रजिस्टर जब उनको दे दिया जाएगा तो अपने रजिस्टर को खोल कर देखेंगे। वज़ियल किताब फतरल मुजरिमीना मुश्फिकीन मिम्मा फी, अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसा रजिस्टर है, ये कैसा नाम है अमाल अल्लाह, जिनमें हर छोटी बड़ी गुनाह इनके अंदर मौजूद है। अल्लाह, जो मैंने बंद कमरे में किया था, हॉस्टल में रह के किया था, अल्लाह मैं रात के सन्नाटे में किया था, उन तमाम की तमाम चीज इसमें मौजूद है। अल्लाह ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है, कैसा रजिस्टर है। अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन हम तमाम चीजों को उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। जब हमारा कचरा चिट्ठा जब हमारे हाथ में रख दिया जाए, आए नौजवानों, आए गुनाहों के अड्डा में रहने वालों, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम बच नहीं सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह तमाम चीजों से तुम्हारे कंडीशन लगा के रखा है, तुम आजाद नहीं हो। देश भारत सन 1947 में आजाद हुई थे, उस वक्त से लेकर तुम अपने आप को आजाद समझते हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ आजाद नहीं हो। अल्लाह तुमको अपने अपने अंडर के नीचे रखा है, अपने बाउंड्री के अंदर रखा है, ताकि तुम जिधर भी जाओ तुमको अल्लाह तबारक व तआला के उस तमाम चीजों को बायकट नहीं करना है। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन जलसों में मैं ज्यादातर देख रहा हूँ कि जितनी भीड़ जलसों के पंडाल के नीचे नहीं होंगे, उतनी कहीं ज्यादा पंडाल से बाहर होंगी, उन बाजार के अंदर होगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं जानता हूँ इस इलाके में रिश्तेदार है, इसी जगह में गाना बजना हुआ था, मुझे मालूम है।
3-3, 4-4 रात गाना और नचुनिया और वो फाहिशा, वो बदचलन, वो जिस्म फरोश आए थे जो अपने हमारे ईमान के सौदा किए थे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे भी आदमी के जब वो आ जाते हैं तो पूरी पूरी रात हमें नींद नहीं आती है और सारी रात हमारी इस नौजवान नस्लें वहां खड़े होकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बाकायदा उसको वीडियो बना रहे हैं और बाप भी देख रहे हैं और बेटा भी देख रहा है। अल्लाह ऐसी कौम को तू गारत कर देता, लेकिन तेरे नबी की दुआ है, तेरे नबी की अपील है अल्लाह कि अल्लाह मेरे उम्मत को कभी हलाक ना करना। मेरे प्यारे साथियों, इतनी गुनाह और इतनी बर्बरतियां हो रही है इस दौर पर। मेरे प्यारे साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई चीज देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है, हमारा मुआखजा किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज और लाता हूं, नौजवानों, मोबाइल के जरिए से जो गलत इस्तेमाल करते हो, जिन चीजों को तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, ये चीज भी उनके अंदर मौजूद है। हत्ता इदा मा जाऊहा शहीद अलैकुम समउहुम व अबसारुहुम जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। नौजवानों सुनो, रात की तनाई में अकेले हो, मोबाइल एंड्रॉइड तुम्हारे पास है। नौजवानों, ऐसी तकरीर तुम्हें सुनने में खैर तुम्हें मिलेगी या नहीं, लेकिन हाँ सर्च करना, उन उलमाओं की तकरीर भी सर्च करना, उनके अंदर तुम्हें वो तकरीर भी मिल जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुमसे कह रहा हूँ, नौजवानों, कोई चीज का डर नहीं है, किसी चीज की डर नहीं है। बाप भी अलग कमरे में है, उस्ताद भी अलग कमरे में है, अकेले हैं, साथी भी अकेले हैं, अलग रजाई में छुपे हुए हैं, हम भी अलग रजाई में छुपे हैं। रात के सन्नाटे में मोबाइल का स्क्रीन पर जिन चीजों का जायजा ले रहे हो, सुनो, हमारी समाज, हमारी कौम, हमारे मुआशरा कैसे सुधर जाए जब किसी के अंदर अल्लाह का डर ना हो, अल्लाह के सामने जवाबदाही का एहसास ना हो। नौजवानों, हत्ता मा जाऊहा शहीद अलैकुम समउहुम व अबसारुहुम जुलूदुहुम बिमा कानू यालमून। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उन तमाम चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है जो तुम्हारी उंगलियां रात की 12 बजे भी टच कर रही हैं। तुम्हारी आंख जिन जिन चीजों को देख रही है, जिन जिन चीजों की जायजा ले रही है, उनको भी अल्लाह रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला, कल क़यामत का दिन होगा, हमारी जुबान पर पट्टियां लगा दी जाएगी, हमारी उंगलियां गवाही देंगी, हमारी चमड़ियां गवाही देगी, हमारी पैर गवाही देंगे और ये जमीन भी गवाही देगी। ये रागल आलमीन, यहाँ पे जलसा मुनाकिद किया गए थे, यहाँ पे इनका सदारत करने वाला अच्छे शख्सियत थे, अल्लाह तकरीर करने वाले भी अच्छी थे। ये रागल आलमीन, जहाँ पे तेरी हदीस और कुरान की बात हो रही थी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। अल्लाह, इनको अल्लाह हिदायत देने वाला तू है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला, हिदायत का चाबी अल्लाह का हाथ में है, हिदायत का जो कुंजी है वो अल्लाह का हाथ में है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अल्लाह तबारक व तआला जिसको हिदायत दे दे वो हिदायत पा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, और अब मैं जो अर्ज कर रहा था कि रात के तनाई में हम गुनाह कर रहे हैं और मुझे एहसास हो रहा कोई नहीं देख रहा है। नौजवानों, मैं भी नौजवान हूं, जब रात के सन्नाटे में मोबाइल यूज कर रहे हैं, जब गलत वीडियोज आते हैं, नंगी लड़की की फोटोज आते हैं, तो हम सोच रहे वाह कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखना, मौलवी अंदर तुम्हें नहीं देख रहा है, मौलवी अंदर तुम्हें नहीं देख रहा है, समाज के लोग तुम्हें नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। लेकिन ये सचो, ये सोचो, कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। शहीद अलैकुम समउहुम व अबसारुहुम जुलूदुहुम बिमा कानू यालमून। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इन हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उंगली भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी, तुम्हारे पैर भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंख भी गवाही देगी। मेरे प्यारे साथियों, इतनी तमाम की तमाम हदीसों, कुरान और इन वाक़यात को लाने का मकसद, निचोड़ करके लाने का मकसद एक ही चीज है कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। नौजवानों, अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं,
गलत चीजों में मत रहना। अल्लाह का कहीं भी रहो, आताल में रहो, किसी भी कोने पर रहो, किसी भी गोसे पर रहो, किसी भी चप्पे पर रहो, कहीं भी रहो, रात के सन्नाटे में रहो, हॉस्टल में रहो या बाहर में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुमसे अगर शरीयत इजाजत देती हाथ जोड़ने की, मैं तुमसे हाथ जोड़ लेता, लेकिन जलसा ज्यादा सुनना जरूरी नहीं है, उस पर अमल करना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, एक चीज याद रखना, कोई देखे या ना देखे, लेकिन अल्लाह देख रहा है। हमारा मौक़िदा होगा जब हमारी मौत आएगी, मलकुल मौत आ जाएंगे, फिर हमको हमारे तमाम किए का बदला, हमको तमाम किए का जवाब हमको देना है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस गुनाही के दौर पर, इस बेहयाई के दौर पर अपनी इफ्फत व अज़मत को बचाना बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। और ये कह दिया है दुनिया सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल लिल काफिरीन, अगर मोमिन बनोगे तो ये दुनिया का खाना है। तुमने सोशल मीडिया के जरिए से देखे हो इतने आलिमों